Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम MCQs देखने वाले हैं of the poem The Seven Ages. So let us begin. The first question is, what is the first stage of life described in the poem? First stage क्या थी हमको पता है, it is of the infant. Okay. The second stage of life, the school boy is described as being. जब second stage की बात होती है as a school boy, तो किस तरीके से उसको describe किया गया है? Reluctant to study, full of energy and enthusiasm, whining and unwilling to go to school, या फिर ambitious. तो हमको बताया गया है by William Shakespeare that the child is whining, रो रहा है वो, and he is unwilling to go to school. उसको स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है. Next is, what is the main characteristic of the lover in the third stage? Sighing and writing poems, busy with work, thinking about the future, या फिर seeking wealth. तो हमको पता है third stage में in the lover stage this person is sighing and writing poems. Next is, what role does the fourth stage of life represent? Fourth stage क्या थी life की? It is of a soldier. Next is, what does the justice in the fifth stage symbolize? जो fifth stage है of the justice, उससे क्या symbolize होता है? Wealth and power, wisdom and experience, youth and energy, या फिर love and passion. तो हमको पता है wisdom and experience एक जज की तरह जस्टिस वाली स्टेज पे इंसान एक्ट करता है और उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होता है और बहुत वाइज इंसान होता है, विजडम भी होती है. नेक्स्ट इज, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब एज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड एज इन द सिक्स्थ स्टेज? क्या बोलते हैं वो? फुल ऑफ विजडम होता है इंसान, स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक होता है, वीक, फ्रेल एंड विद चाइल्डिश वॉइस होता है, या फिर एम्बिशियस. तो ओल्ड एज तक आते आते इंसान वीक हो जाता है, फ्रेल हो जाता है एंड उसकी वॉइस जो है वापस से पतली सी एकदम चाइल्ड की तरह होने लगती है. Which of the following best describes the second childhood in the seventh age? सेकेंड चाइल्डहुड जो है वो सेवेंथ एकदम लास्ट स्टेज जो है लाइफ की, उसमें उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? अ टाइम ऑफ ग्रोथ, डिपेंडेंस एंड फ्रेलिटी, फुल ऑफ जॉय एंड एनर्जी, या फिर अ टाइम ऑफ ग्रेट अकम्पलिशमेंट. तो पता है हमको डिपेंडेंस आ जाती है एक इंसान के अंदर, वो डिपेंडेंट हो जाता है, एंड फ्रेलिटी आ जाती है, वो एकदम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है इंसान लास्ट में. What does the phrase all the world's a stage suggest? All the world's a stage से हमको क्या समझ में आता है? Life is a performance, everyone is an actor in a play, life is unpredictable, या फिर life is a game. तो हमको पता चलता है कि life is a performance. Okay? Next, in the poem, who is described as sighing like a furnace in the second stage? ठीक है? Sighing like a furnace जो बोला गया है वो किस स्टेज के लिए बोला गया है? तो इट इज फॉर द लवर, साइंग लाइक अ फर्नेस. What does the term pantaloon refer to in the sixth stage? A young energetic man, a brave soldier, an old weak man, या फिर a wise judge. तो हमको पता है एक old और weak इंसान को यहाँ पे refer किया गया है through this word. The phrase his youthful hose well saved refers to, क्या समझ में आता है? His youthful hose जो well saved है उससे. The old man's past strength, the old man's clothes from his younger days, the lover's affection, या फिर the schoolboy's school bag. तो हमको समझ में आता है the old man's clothes from his younger days. Now, what does the poet mean by his big manly voice turning again towards a childish treble? तो इससे हमको समझ में आता है कि the voice becomes soft and high pitched again, जैसे कि एक बच्चे की आवाज़ होती है. What is the tone of the poem? The seven stages of a man. पूरी की पूरी जो पोम है उसकी टोन क्या है? वो रिफ्लेक्टिव सी टोन है, पूरी की पूरी लाइफ को समराइज करती हुई, रिफ्लेक्शन करती हुई टोन है. Which poetic device is used in the line all the world's a stage? जो ये लाइन है इसमें कौन सा poetic device यूज हुआ है? मेटाफर. बिकॉज एक स्टेज को एक लाइफ से कंपेयर किया गया है, वर्ल्ड से कंपेयर किया गया है विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड एज और लाइक. तो इट इज अ मेटाफर. What stage is described by a man in his time plays many parts? एक इंसान अपने टाइम में बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है. उससे हमको सोल्जर, जस्टिस और स्कूल बॉय तो नहीं समझ आता क्योंकि वो तो सिंगुलर स्टेजेस हैं. हमको पता चलता है द स्टेजेस ऑफ लाइफ एज अ होल. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए हो MCQs. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है. सो गो चेक आउट www.magnetbrains.com. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो गो चेक दैट आउट एज वेल. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय.